हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी हैव लर्न अबाउट माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम एंड माइक्रोवेव डिवाइसेस। फर्स्ट, in this video we have discussed all basic concept about all microwave devices, in which frequency they are operate or generate or amplify. We have discussed all IEEE, that is the Institute of Electrical and Electronics Engineering recommended new microwave band. That is a look like this. Generally, when we discuss about microwave, that means roughly from 30 centimeter to 1 mm, or in terms of frequency, that is 1 gigahertz to 300 gigahertz. However, microwave really indicate the wavelength in micron range. This means microwave frequency up to infrared and visible range, that is from 1 gigahertz to 10 power 6 gigahertz. Microwave devices, when we discuss microwave devices, there is some history. Before history, we discuss microwave spectrum. Microwave spectrum from recommended by IEEE microwave frequency band, that is a high frequency from 0.003 gigahertz to 0.03 gigahertz, very high frequency 0.03 gigahertz to 0.3 gigahertz, and ultra high frequency from 0.3 to 1 gigahertz. Similarly, from L band 1 to 2 GHz, S band 2 to 4 GHz, C band 4 to 8 GHz, X band 8 to 12, KU band 12 to 18, K band 18 to 27, and KA band, that is a 27 to 40 millimeter waves, that is a 40 to 300 sub-millimeter greater than 300 GHz. All are microwave frequency spectrum. तो जब हम लोग बात करते हैं माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, मीन्स जो भी डिवाइसेस माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में होगी, आइदर बी सॉलिड स्टेट डिवाइस, आइदर बी ट्यूब्स, माइक्रोवेव ट्यूब्स लाइक ओ बीम टाइप एंड एम टाइप माइक्रोवेव ट्यूब्स, all are generated, means that is a work as a oscillator, as amplifier, work as a amplifier at this range. तो हम लोग जितनी भी माइक्रोवेव डिवाइसेस हैं बहुत सारे टाइम में उनके बारे में हम लोग स्टडी करें किस बैंड में कौन डिवाइस ऑपरेट कर रही है. बिफोर गोइंग टू दैट वी हैव नो दैट इज अ कन्वेंशनल ट्यूब. बार बार नाम आता है, दैट इज कन्वेंशनल ट्यूब. कन्वेंशनल ट्यूब इज मेनी टाइप्स, दैट इज लाइक ट्रायोड्स, टेट्रोड्स एंड पेंटोड. all device, this type of device also work as amplifier एंड ऑस्किलेटर. तो एम्पलीफायर एंड ऑस्किलेटर ये भी डिवाइस वर्क करती हैं बिकॉज ऑफ व्हेन वी ऑपरेट दैट डिवाइस इन हाई फ्रीक्वेंसी डोमेन इन द रेंज ऑफ माइक्रोवेव, then there is a some limitation of these device. We have discussed all limitation in detail in next class. First we know that conventional tube is classified in mainly three category: triode, tetrode and pentode. Next we have discussed what is the historical background about that. तो हम लोग ये जानते हैं कि 1930 में वेवलेंथ अप्रोच द फिजिकल डायमेंशन ऑफ वैक्यूम ट्यूब. वैक्यूम ट्यूब का जो डायमेंशन है इसको वेवलेंथ के टर्म में 1930 में अडॉप्ट किया गया कि कैसे इसकी डायमेंशनिंग करेंगे. तो जनरली फर्स्ट दैट इज ए कन्वेंशनल ट्यूब, सेकेंड दैट इज अ सॉलिड स्टेट डिवाइस, थर्ड दैट इज अ ट्यूब्स लाइक ओ ट्यूब्स एंड एम ट्यूब्स. तो तीन तरह की डिवाइसेस पूरे माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में हैं. तो कन्वेंशनल ट्यूब तो हम लोग ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट डिवाइसेस. इन 1935 ए हेली एंड ओ हेली सजेस्ट दैट माइक्रोवेव वोल्टेज बी जनरेटेड बाय यूजिंग ए ट्रांजिट टाइम इफेक्ट एंड लम्प ट्यून सर्किट. इन दो ट्रांजिट टाइम इफेक्ट एंड लम्प ट्यून सर्किट के प्रिंसिपल को मिक्स करके ओ हेली एक डिवाइस बना के शो भी किया था बाद में, लेकिन इन्होंने ही बेसिक कंसेप्ट दिया. 1939 में W.C. हान एंड G.F. मेटकाफ प्रपोज थियरी दैट इज अ वेलोसिटी मॉड्यूलेशन फॉर माइक्रोवेव ट्यूब्स. 4 months later R.H. Varian and S.F. Varian described two cavity klystron amplifier and oscillator by using velocity modulation. In 1944 R. Kompner invented helix type traveling wave tubes.
historically microwave generation and amplification using velocity modulation theory. In past 2 decades, microwave solid state device such as tunnel diode, gun diode, transfer electronic device, avalanche transit time device has been developed to perform these operations. In 1961, B.K. Ridley and T.B. Watkin, and in 1962, C. Hilliam independently predict that transferred electronics effect would occur in a gallium arsenide. In 1963, J.B. Gunn reported a Gunn effect. The common characteristic of all microwave solid state device is negative resistance that are used for microwave amplification and oscillator. मीन्स जो भी माइक्रोवेव डिवाइस हैं उसमें निगेटिव रेजिस्टेंस इफेक्ट का हम यूज़ करके एज ए एम्पलीफायर एज ए ऑसिलेटर जनरेट करते हैं. तो फर्स्ट कितनी तरीके माइक्रोवेव सॉलिड स्टेट डिवाइस हैं आपके माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में, कितनी तरीके के माइक्रोवेव ट्यूब्स हैं, ये हम लोग क्लासीफाई किए हुए हैं एक स्लाइड में. तो हमने दिखाया माइक्रोवेव सॉलिड स्टेट आर क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरी जनरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल. फर्स्ट माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर, second that is a field effect transistor, third that is transfer electronic device, fourth that is a avalanche transit time effect, avalanche transit time device. Microwave transistor generally 1948 Shockley and co-worker invented bipolar junction transistor. तो ये उस प्रिंसिपल पे बेस्ड है और ये डिवाइस UHF टू अबाउट S बैंड फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है. प्रेजेंटली अप टू 22 गीगाहर्ट्ज पे डिवाइसेस ऑपरेट होती हैं बेस्ड ऑन सिलिकॉन. तो माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर में हमने देखा माइक्रोवेव BJT एंड हेट्रो जंक्शन बाइपोलर ट्रांजिस्टर एंड टनल डायोड. टनल डायोड इज क्लासिकली पेपर ऑफ इसाकी इन 1958 में इन्होंने एक पेपर इसाकी साहब ने एक प्रेजेंट किया, दैट इज अ टनल डायोड दैट शो नेगेटिव रेजिस्टेंस एट अ जंक्शन रेजिस्टेंस इसका नेगेटिव होता है. आपने IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस डायोड देखा भी है. तो दैट इज ऑल अबाउट माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर. माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर क्या है, जनरली कंस्ट्रक्शन नॉर्मल BJT और माइक्रोवेव BJT में कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस होता है. आप वहाँ भी सुने होंगे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यहाँ पे है दैट इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. दोनों में डिफरेंस होता है. सेकेंड दैट इज अ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. जैसा आपने जेफेट मेसफेट आपने पढ़ा भी है, लेकिन यहाँ भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें कंस्ट्रक्शनल एंड डोपिंग प्रोफाइल में चेंज होते हैं. सिमिलरली फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है क्लासिफाइड जेफेट दैट इज जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड मेसफेट मेटल सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, HEMTS हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर, मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, and NMOS, PMOS, CMOS and memories devices like development using NMOS technique, ROM, PROM, EPROM, SROM, BSROM, DROM. And third category that is charge coupled devices. Charge coupled devices is also based on the principle of field effect transistor. It is also classified SCCD, BCCD, JCCD, अलग कैटेगरी ऑफ चार्ज कपुल डिवाइसेस. और इस टाइप की डिवाइसेस को जनरली 1969 में बॉयल एंड स्मिथ ने डिस्कवर किया है. थर्ड कैटेगरी दैट इज अ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइस इज बेस्ड ऑन द बल्क इफेक्ट ऑफ ट्रांजिस्टर. जैसे हमने टनल डायोड में बताया था दैट इज अ जंक्शन निगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी. ये डिवाइसेस क्या है, बल्क इफेक्ट ऑफ सेमीकंडक्टर दैट इज ए TED. बल्क निगेटिव रेजिस्टेंस मींस सरफेस का जो निगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी रेदर देन जंक्शन निगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी इन अ टनल डायोड. मतलब टनल डायोड में जो जंक्शन निगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी उस पर प्रिंसिपल पे बेस नहीं है, ये बल्क निगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी शो करते हैं इस टाइप के ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जनरली इन गैलियम आर्सेनाइड. All these device operate in a generally X band. तो इसमें से JB Gunn 1963 में एक डायोड बनाया. इसके पहले लोगों ने काम किया था और इसको गन डायोड जो इन्होंने बनाया 1 वाट एट X बैंड. X बैंड में डिवाइसेस गन डायोड क्या 1 वाट पावर डिलीवर कर रही थी माइक्रो फ्रीक्वेंसी रेंज में. Second, that is LSA diode, that is important, that is a very useful diode, that is limited space charge accumulation diode. ये limited space charge accumulation diode है. LSA diode
250 watt generate in C band. C band from varying from 4 to 8 gigahertz. 100 watt in X band 8 to 12 gigahertz. 50 watt in KU band 12 to 8 gigahertz. Depend on the band, ये डायोड जब यूज होता है तो डिफरेंट पावर जनरेट करता है. सिमिलरली दैट इज इंडियम फास्फाइड डायोड. सेकेंड कैडमियम CDTE डायोड, दैट इज कैडमियम टेलुराइड डायोड. ये डायोड क्या होते हैं, इस फ्रीक्वेंसी अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज में अलग अलग पावर को जनरेट करते हैं. जैसे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आपने देखा होगा, जितनी भी डिवाइस होती है जंक्शन पे हम एक फील्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं गेट पे, उसके द्वारा करंट को कंट्रोल करते हैं. और ट्रांजिस्टर में क्या है, बेस करंट को कंट्रोल करके कलेक्टर करंट कंट्रोल करते हैं. सिमिलरली ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या होता है, बल्क रेजिस्टेंस को वेरी करके हम करंट को कंट्रोल या पावर जनरेट करते हैं. एवलांच ट्रांजिट टाइम डिवाइसेस, ये जैसे जनरली हम लोग डायोड में देखते हैं कि इन रिवर्स वैस में देर इज टू ब्रेक डाउन. फर्स्ट दैट इज ए जेनर, सेकेंड दैट इज ए एवलांच ब्रेक डाउन. तो बेस्ड ऑन दैट फिनोमिना दैट इज एवलांच ऑन ट्रांजिट टाइम हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, व्हाट इज ट्रांजिट टाइम इफेक्ट. तो एवलांच ट्रांजिट टाइम टाइप डिवाइस इज आल्सो क्लासिफाइड इन 4 या 5 कैटेगरीज. फर्स्ट दैट इज अ रीड डायोड. रीड इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट. तो रीड साहब ने एक पेपर पब्लिश किया, उसी के बाद इस फिनोमिना की यूज़ करते हुए अलग अलग वैज्ञानिकों ने काम किया. दैट इज नोन एज अ रीड डायोड. फिर सेकेंड आया दैट इज इम्पैक्ट. इम्पैक्ट मीन्स इम्पैक्ट आयनाइजेशन एवलांच ट्रांजिट टाइम डायोड. तो अब ये प्रिंसिपल तो बेस्ड है एवलांच ट्रांजिट टाइम डिवाइसेस पे. इन 1965 में BC डेलोच एंड RC जॉनस्टन एंड BG चोहेन, इन्होंने इस डिवाइस को डिस्कवर किया. दैट इज इम्पैक्ट. दैट इज इम्पैक्ट. ये क्या करता है बेटा, DC टू RF कन्वर्ट करता है. DC आप अप्लाई करते हो, उसको RF मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है. इसकी DC टू RF कन्वर्जन इफिशियंसी 5 to 10% होती है एट 100 गीगाहर्ट्ज पे. सेकेंड दैट इज अ ट्रैपेट. ट्रैपेट का फुल फॉर्म है ट्रैप्ड प्लाज्मा एवलांच ट्रिगर्ड ट्रांजिट टाइम डायोड. इसकी DC टू RF कन्वर्जन एफिशिएंसी नियर अबाउट 20 to 60% होती है एट द सेम फ्रीक्वेंसी. और लास्ट है दैट इज अ वैरिड डायोड, बैरियर इंजेक्टेड ट्रांजिट टाइम डायोड. इसमें क्या होता है कि सब में एक ड्रिफ्ट स्पेस होगा. नेक्स्ट हम 1 by 1 डिवाइस सारी डिस्कस करेंगे. तो इसमें बैरियर इंजेक्टेड ट्रांजिट टाइम डायोड, इसमें जो ड्रिफ्ट रीजन होता है लॉन्ग ड्रिफ्ट रीजन होता है कंपैरिजन टू इम्पैक्ट एंड ट्रैपेट, और दैट इज अ बैरिड. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंस पल्स गन एंड ट्रैप डायोड एसेंशियली ट्रांजिट टाइम डिवाइसेस, देयर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज डिटरमाइंड बाय थिकनेस ऑफ एक्टिव लेयर इन डिवाइड. जैसे हम ट्रैपेट या जो ये सारी डिवाइसेस हैं, इनकी जो एक्टिव लेयर होती है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ये सारी चीज़ें. तो इनकी एक्टिव लेयर के जितना स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का है, या प्रोपोर्शनल टू एक्टिव लेयर का जो भी थिकनेस है उसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है. सॉलिड स्टेट माइक्रो डिवाइस वाइडली यूज इन राडार, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल, बायोलॉजिकल इक्विपमेंट. जनरली ट्रांजिस्टर, जो हम माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर की बात कर रहे थे, L बैंड एज ए टेलीमेट्री ऑपरेशन एंड L and S बैंड फॉर कम्युनिकेशन में ऑपरेट होती है एज एप्लीकेशन. TED जो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं, CX KU बैंड ECM एप्लीकेशन के एम्पलीफायर के लिए यूज़ होती हैं. X KU बैंड राडार ट्रैफिक कंट्रोल के यूज़ होते हैं. इम्पैक्ट डायोड मिलीमीटर वेव्स के लिए यूज़ होते हैं एज एप्लीकेशन. ट्रैपेट S बैंड फॉर पल्स ट्रांसमीटर फॉर राडार. बैरिड दैट इज ए लोकल ऑस्किलेटर इन कम्युनिकेशन और राडार. मॉसफेट जनरली X बैंड में 8 to 12 गीगाहर्ट्ज पे ऑपरेट होता है. अब हम बात करेंगे बेटा, देखो हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था होल माइक्रोवेव डिवाइस. फर्स्ट हमने बताया दैट इज कन्वेंशनल डिवाइसेस. सेकेंड हमने बात किया सॉलिड स्टेट डिवाइसेस. कन्वेंशनल डिवाइसेस ऑपरेट एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी. थर्ड हमने बताया कि माइक्रोवेव ट्यूब्स. फर्स्ट हम बात करेंगे O टाइप ट्यूब या लीनियर बीम ट्यूब्स. O मीन्स ओरिजिनल टाइप. तो O टाइप डिवाइसेस में हमने कुछ वैज्ञानिकों ने काम किया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे.
उसके बाद हम बात करेंगे कितने क्लासिफिकेशन इसके हैं। पैरामाउंट ओ टाइप ट्यूब इज टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन एंड इट्स फॉलोड बाय रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन। द हेलिक्स वेव ट्रेवलिंग ट्यूब TWT, coupled traveling tube, the forward wave amplifier and backward wave amplifier and oscillator, but they have non-resonant periodic structure for electron interaction। इसमें जो भी स्ट्रक्चर हम कैविटी का लेते हैं नॉन रेजोनेंट कुछ डिवाइसेस में टेस्ट। अब इसमें हमने देखा, देखो बेटा, लीनियर वेव ट्यूब क्लासिफाइड किया कैविटी। कैविटी क्या होता है एक डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में बात करें। कैविटी अगर रेजोनेंस कैविटी है, अगर दो कैविटी है दोनों रेजोनेंस कर रही है, तो उस प्रिंसिपल पे जो डिवाइस बेस होती है उसको बोलते हैं क्लेस्ट्रॉन एंड रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन। क्लेस्ट्रॉन एंड रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन। क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर वेरियंस ब्रदर ने डिस्कवर किया था इन 1939 में। और तो ये बेस्ड किस पे था? रेजोनेंट कैविटी और रेजोनेंट कैविटी पे। सिमिलरली व्हेन वी यूज अ स्लो वेव स्ट्रक्चर, अगर हम स्लो वेव स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो इसको दो क्लासिफिकेशन इसका किया है हमने, फॉरवर्ड वेव, बैकवर्ड वेव। फॉरवर्ड वेव में हेलिक्स ट्रेवलिंग वेव ट्यूब एंड कपुल्ड कैविटी ट्रेवलिंग वेव ट्यूब। तो हेलिक्स ट्रेवलिंग वेव ट्यूब एंड कपुल्ड कैविटी ट्रेवलिंग वेव ट्यूब्स, ये सब स्लो वेव स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? जब हम वेलोसिटी ऑफ लाइट को रिड्यूस करें, जैसे साइनोसाइडल इंडक्टर आप देखते होगे, तो अगर उसमें कोई वेव पास करें तो उसमें कुछ रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट जब TWT की बात करेंगे तो हम डिटेल में बात करेंगे। सिमिलरली इसी प्रिंसिपल पे, इसी स्ट्रक्चर पे बैकवर्ड वेव पे दो एम्पलीफायर बनते हैं, बैकवर्ड वेव एम्पलीफायर एंड बैकवर्ड वेव ऑस्किलेटर। इन प्रिंसिपल पे ए बैकवर्ड वेव दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। सिमिलरली व्हेन वी यूज सम क्लेस्ट्रॉन कंपोनेंट एंड ट्रेवलिंग वेव कंपोनेंट, तो इस टाइप की डिवाइस को बोलते हैं हाइब्रिड टाइप डिवाइस। तो इसको हम ट्विस्ट्रॉन बोलते हैं, ट्विस्ट्रॉन टाइप डिवाइस क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सम क्लेस्ट्रॉन एंड सम ट्रेवलिंग वेव ट्यूब कंपोनेंट। तो जनरली और टाइप की डिवाइसेस होती हैं, लेकिन हमने इतनी टाइप की डिवाइस को डिस्कस किया है। द स्विचिंग ट्यूब सच एज क्राइट्रॉन, थायराट्रॉन एंड प्लेनर ट्रायोड आर वेरी यूजफुल इन लेजर मॉड्यूलेशन। इसको हमने यहाँ पे नहीं दिखाया है। और सेकेंड, सिंस अर्ली 1960 की बात कर रहे हैं, ये सब हमने ईयर वाइज बताया आपको। 1960 में क्या है, जब ये सॉलिड स्टेट डिवाइसेस आई तो इन माइक्रोवेव जो ट्यूब्स हैं इसका रिप्लेसमेंट लोग सोचने लगे कि रिप्लेस कर दें इसको, क्योंकि सॉलिड स्टेट डिवाइस पहले डिस्कवर हुई थी रिस्पेक्ट टू दीज ट्यूब्स। तो 1960 में देखा गया कि सॉलिड स्टेट डिवाइस एज लाइक BJT, टनल डायोड, गन डायोड, तो वो एज अ कंपेरेटिव टू लो फ्रीक्वेंसी रेंज में जो जनरेट कर रही थी कंपैरिजन टू दिस। जब हाई फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे तब एम्पलीफाई ट्यूब्स को रिप्लेस नहीं किया जा सकता इन कंपैरिजन टू सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। तो हमने लिखा है द सिंस द अर्ली 1960 prediction have continued that microwave tubes will be displaced by microwave solid device. This displacement has occurred only at low frequency and receiving circuit level equipment. अब बेटा हम लोग बात करेंगे जो M टाइप डिवाइसेस। अब माइक्रोवेव में M टाइप डिवाइसेस क्या होती है? जनरली हम लोग क्रॉस फील्ड ट्यूब बोलते हैं इसको। क्रॉस फील्ड मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस टाइप के डिवाइसेस में क्या होगा? परपेंडिकुलर दोनों होंगे। इन क्रॉस फील्ड डिवाइसेस DC मैग्नेटिक फील्ड, DC इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इन DC मैग्नेटिक फील्ड प्ले डायरेक्ट रोल इन RF अट्रैक्शन प्रोसेस। तो इसमें एक फिगर हमने बनाया है, आगे आप देख लीजिएगा इसमें, कि जब इलेक्ट्रॉन एंटर करता है अगर ड्यूरिंग रिटॉर्टिंग फील्ड ऑफ AC, देन दैट गिव अप सम इट्स एनर्जी टू RF फील्ड एंड रीच टू एनोड। मतलब एक कैथोड है, एक एनोड है। अगर रिटार्टिंग के ड्यूरेशन में अगर इंटर कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी RF फील्ड को देता है, और RF फील्ड के देने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है एनोड तक पहुंच जाता है। दैट इज कॉल्ड M ट्यूब, दैट इज क्रॉस फील्ड ट्यूब। दोज इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इन द सर्किट ड्यूरिंग एक्सेलरेटिंग फील्ड, अगर एक्सेलरेटिंग फील्ड के दौरान अगर एंटर कर रहा है इलेक्ट्रॉन
तो एनफ एनर्जी क्या होगा, वो आरएफ फील्ड से लेना शुरू करेगा और इसके कारण क्या होगा कि आपका इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी और वो रिटर्न होके कैथोड पे ही आ जाएगा, जो प्रोड्यूस है हीट इन कैथोड, डिक्रीज इन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। तो ये सब तो वर्किंग है, हम TWT के जब बात करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे। देखो रेजोनेंट मीन्स सम LC सर्किट लाइक रेजोनेंट क्रिएट करती है, दैट इज अ रेजोनेंट। और सेकेंड दैट इज अ रीइंट्रेंट मीन बेटा होता है, जैसे मान लो ग्लास है, ग्लास के बाहर कंडक्टर लगा है, अगर ग्लास के अंदर भी लग जाए तो इस टाइप की कैविटी को हम बोलते हैं रीइंट्रेंट कैविटी। रीइंट्रेंट कैविटी इज वन इन विच मेटेलिक बाउंड्री एक्सटेंडेड इनटू द इंटीरियर ऑफ द कैविटी at below microwave range. Cavity resonator can be represented by lumped and constant resonant circuit. तो कहने का मतलब ये है बेटा कि जब कंडक्टर इनसाइड अ ग्लास आ जाए तो उसको हम रिस्ट्रेंट कैविटी कहते हैं। अगर किसी कैविटी में रेजोनेंट हो रहा है और स्टैंडिंग वेव परफॉर्म हो रही है, उसमें कैविटी जो यूज हो रही है रीइंट्रेंट कैविटी यूज हो रही है, तो उसको हम बेसिक मैग्नेट्रॉन बोलते हैं। इस टाइप की डिवाइसेस दैट इज अ मैग्नेट्रॉन। सिमिलरली नॉन रेजोनेंट कैविटी प्रिंसिपल पे भी बेस्ड है कुछ डिवाइसेस, क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरी, फॉरवर्ड वेव, बैकवर्ड वेव। फॉरवर्ड वेव अगर यूज कर रहे हैं उसमें नॉन रीइंट्रेंट कैविटी यूज कर रहे हैं, तो अगर फॉरवर्ड वेव में रीइंट्रेंट कैविटी हो रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड वेव क्रॉस फील्ड एम्पलीफायर। क्या बोलते हैं इसमें? फॉरवर्ड वेव क्रॉस एम्पलीफायर, क्रॉस फील्ड एम्पलीफायर। Second category that is a non-reentrant cavity, that is called Dematron. And principle of backward wave, there are two when we use a reentrant structure of cavity, when we use non-reentrant structure of cavity। तो reentrant जब यूज कर रहे हैं तो that is a एम्पलीट्रॉन। इसको हम लोग एम्पलीट्रॉन बोलते हैं क्योंकि एम्पलीट्रॉन एक ट्रेड नेम है कंपनी का। वो रेथिन एक कंपनी थी 1960 में, तो ये बैकवर्ड वेव क्रॉस फील्ड एम्पलीफायर को बेचने के लिए ट्रेड नेम यूज़ की, दैट इज एम्पलीट्रॉन। सिमिलरली जब बैकवर्ड 1960 में एक फ्रेंच कंपनी थी इन विच इंजेक्शन गन इज रिप्लेस द कन्वेंशनल सिलेंड्रिकल कैथोड ऑफ मैग्नेट्रॉन, इट इज ट्रेड नेम कार्सिनोट्रॉन। ये जो नॉन रीइंट्रेंट कैविटी यूज कर रहे थे दैट इज अ कार्सिनोट्रॉन। That is a third category that is based on the principle of major effects. Major effect that is like a gytron. Gytron is also based on the principle of this. So traveling wave tube magnetron is also classified in many categories, several categories. इसमें हम लोग देखेंगे डिटेल 1 by 1 डिवाइसेज नेक्स्ट क्लास में। सिलेंड्रिकल जैसे लाइक सिलेंड्रिकल मैग्नेट्रॉन डेवलप्ड बाय बूट एंड रेंडाल इन 1940, और जैसे हमने बताया ही है बैकवर्ड वेव क्रॉस फील्ड 1960 में डेवलप हुआ। तो स्टार्टिंग में हल इन्वेंटेड, हल को क्रेडिट जाती है, हल इन्वेंटेड मैग्नेट्रॉन 1920। लेबोरेटरी डिवाइसेस हम लोग जब बना पाए आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, दैट इज अराउंड 1940। And also split anode magnetron use negative resistance between two anode and segment, and cyclotron frequency they operate under the influence of synchronization between alternating component of electric field and periodic oscillation E in the direction of parameter। ट्रेवलिंग वेव मैग्नेट्रॉन, ये सब सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दैट इज अ बेसिक कंसेप्ट कि शुरू में हम लोगों ने क्या देखा, हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट दैट इज कन्वेंशनल ट्यूब, सेकेंड दैट इज अ सॉलिड स्टेट डिवाइस, थर्ड दैट इज अ माइक्रोवेव ट्यूब्स। माइक्रोवेव ट्यूब्स में हमने 2 कैटेगरी डिवाइड किया, O टाइप एंड M टाइप। O फॉर ओरिजिनल, M दैट इज अ क्रॉस फील्ड ट्यूब्स। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि लिमिटेशन ऑफ कन्वेंशनल ट्यूब, व्हाई वी डज नॉट ऑपरेट ऑन अ हायर फ्रीक्वेंसी टू कन्वेंशनल ट्यूब्स। तो इसमें हम इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस एंड लीड इंडक्टेंस क्या क्या रीजन है, इसको बात बैंड विड्थ और गेन में क्या लिमिटेशन है, इसको बात करेंगे। थैंक यू। ये लेक्चर सुनने के बाद आप बुक पढ़िए, सारी डिवाइस देखिए, आपका पूरी सिलेबस की डिवाइस कवर हो चुकी हैं। थैंक यू।